Good morning, my dear students. Welcome in social studies class. Beta, in the previous class, we have started our new chapter, chapter number 6, the coastal plains and the islands. And today we will continue with the same chapter. And in the previous class, I told you about the coastal plain and the island. Coastal plain is an area adjacent to the sea, which is parallel to the sea. Okay, that is coastal plain area. And island is an area, is a part of land which is surrounded by water on all sides. Okay, and in previous class we have also learned about that coastal plain are divided into two parts, western coastal plains and eastern coastal plains. Okay, western coastal plains on the west side and eastern coastal plains from the east side. Western coastal plains are divided into three coasts: top Gujarat coast, next middle Konkan coast, and in the bottom, in the south from Goa to Kanyakumari is Malabar coast. Okay, same in eastern coastal plains. In the top, northern Sarkars, and in the bottom means in the south is Coromandel coast. Is it clear? Now today we will read about the island and life in the region. Okay, so open page number 43 in your book. Start reading. Yes, bete, this is page number 43 and our next topic is the islands. Islands, I told you, an island is a piece of land surrounded by water on all sides. The two groups of islands of India are Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep. Okay, look at this map. Yes, here on your right, this is Andaman Nicobar Island, and on your left it is Lakshadweep Island. There are two groups of island in India. Okay, now first is Andaman and Nicobar Island. It is a group of about 300 islands, big and small. Only a few of them are inhabited. Inhabited होता है to live in a place, जहाँ पे लोग रहते हैं, जो बसे हुए हैं, inhabited by the people. Their main occupation is फिशिंग एंड फार्मिंग, मछली पालन और फार्मिंग करते हैं वो लोग. ठीक है. द अंडमान आइलैंड लाइज 120 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ द निकोबार ग्रुप. ठीक है. इट इज लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल. द टेरिटरी कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर. ठीक है. इट्स कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर. नाउ द सेल्यूलर जेल, दिस इज सेल्यूलर जेल इज अ नेशनल मूवमेंट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. देखिए, ठीक है. When India was ruled by the British, many Indian freedom fighters were kept in this jail. It is old. It is one of the oldest jail in India, and it is from the Britishers' time. Okay. Next is Lakshadweep Island. ठीक है. Next group is Lakshadweep Island. In 1956, the Lakshadweep, Minicoy and Amindivi group of islands became a union territory. In 1973 this territory was named as Lakshadweep. ठीक है. पहले जो है ये नेम होता था कौन सा? लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनीद्वीप group of islands became a union territory, but in 1973 this territory was renamed as Lakshadweep. Okay. Lakshadweep islands are in Arabian Sea, क्लोज टू द मालाबार कोस्ट. आपके लेफ्ट में जो है अरेबियन सी है और वहाँ पे क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड है. ठीक है. दे आर नॉट फॉर फ्रॉम द मेन लैंड. लुक हियर, पीपल ऑफ लक्षद्वीप. ठीक है. Lakshadweep islands are small and flat. This group consists of 36 islands. Only 10 islands are big enough for people to live on and earn their living. ठीक है. मोस्ट ऑफ द पीपल हेयर आर एंगेज इन एग्रीकल्चर. मीन्स यहाँ पे और कोई मेन ऑक्यूपेशन नहीं होता बेटा आइलैंड्स पे. मेनली वो लोग फार्मिंग और फिशिंग ही करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है लाइफ इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन. अब हम कोस्टल रीजन की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे. वेस्टर्न कोस्टल रीजन इंक्लूड्स गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड केरला. विल रीड अबाउट दीज स्टेट्स. ओके. फर्स्ट है गुजरात. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात इज कॉल्ड द रन ऑफ Kutch. Most people of Gujarat are traders and farmers.
ट्रेडर्स जो बिजनेसमैन होते हैं वो, और फार्मर्स हैं। मेन क्रॉप्स हैं उनके ज्वार, बाजरा, कॉटन, वीट एंड शुगर केन। ठीक है। डेयरी फार्मिंग इज़ पॉपुलर। डेयरी फार्मिंग जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं ना आपके, वो जो है वहाँ पे पॉपुलर है। ये जो आपका अमूल मिल्क है ना, ये वहीं गुजरात ही इसका जो है इंडस्ट्री है मेन। ठीक है। एंड अराउंड आनंद, ये दिखा, अराउंड आनंद अमूल वेल नोन फॉर इट्स डेयरी प्रोडक्ट्स, जो इसके मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं, दही, लस्सी, मिल्क, बटर। ओके। द सिटी हैज़ मैनी टेक्सटाइल मिल्स। टेक्सटाइल जो कपड़े के मिल होते हैं। ठीक है। गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात, यू नो वेरी वेल। अहमदाबाद इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन गुजरात। साबरमती आश्रम लोकेटेड ऑन द आउटस्किट्स ऑफ अहमदाबाद हैड बीन महात्मा गांधी इज़ होम फॉर मैनी ईयर्स। महात्मा गांधी जो हैं वो अहमदाबाद में कहाँ रहे थे? वो साबरमती आश्रम में। ये देखिए, ये साबरमती आश्रम है। ठीक है। इट इज़ इन गुजरात। नेक्स्ट है द गिर नेशनल पार्क इज़ होम टू द एशियाटिक लॉयन। ये देखिए, दिस इज एशियाटिक लॉयन एंड इट इज़ होम फॉर द गिर नेशनल पार्क इज़ द होम फॉर द लॉयन, एशियाटिक लॉयन। ठीक है। द पीपल ऑफ द स्टेट स्पीक गुजराती। लैंग्वेज गुजराती है। मैन जो है दे वेयर धोतीज एंड लॉन्ग और शॉर्ट कोट्स एंड गांधी कैप। लुक हियर इन दिस पिक्चर, यस दिस इज मैन ड्रेस। एंड वुमेन वेयर साड़ीज। रास, गरबा एंड डांडिया आर देयर फेमस फोक डांस ऑफ गुजरात। आपने देखा है वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो दया है वो गुजराती डांडिया करती हैं, है ना? डांडिया करती है ना। हाँ, आप में से बहुत सारे बच्चे देखते होंगे। ओके। गुजरातीज जो हैं दे ईट राइस, पूरी, वेजिटेबल्स, कर्ड एंड पिकल्स। ठीक है। ढोकला इज देयर पॉपुलर प्रिपरेशन। सोमनाथ टेम्पल, द्वारका ऑफ कृष्णा एंड पोरबंदर द होम ऑफ महात्मा गांधी आर फेमस प्लेसेस। ओके। नेक्स्ट स्टेट है बेटे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गुजरात से नेक्स्ट स्टेट है, साउथ डायरेक्शन में मूव करेंगे जब हम। द कोस्टल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र लाई ऑन द कोंकण कोस्ट। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र एंड इज द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया एंड इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर। मुंबई जो है वो एक लार्जेस्ट, मुंबई इज द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। एंड इट इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर ऑल्सो। देर आर सो मैनी इंडस्ट्रीज, बिग इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन मुंबई। ओके। Rice, pulses, mangoes and other fruits are grown in many parts of Konkan coast. ठीक है। This is Konkan coast. Next, it is also known as financial and commercial center of India. Mumbai is main center of Indian film industry. आपको पता है फिल्म मोस्टली फिल्म कहाँ प्रोड्यूस होती है, उनका मेन सेंटर कहाँ है? मुंबई में। There is a very rich oil field under the sea bed at Mumbai High. ठीक है। मुंबई हाई में, मुंबई हाई है बेटा कहाँ? देर इज़ अ वेरी रिच ऑयल फील्ड अंडर द सी बेड एट मुंबई हाई। सी में जो है एक मशीनरी, एक सिस्टम ऐसा लगाया गया है अंडर द वाटर, जहाँ पे जो है ऑयल को रिफाइन किया जाता है, क्रूड ऑयल को, कच्चे ऑयल को। ठीक है। डिफरेंट आगे ऑयल में, जैसे पेट्रोल और डिफरेंट टाइप के ऑयल्स में। ठीक है। थर्ड स्टेट है बेटे गोवा। टुवार्ड्स द साउथ ऑफ द महाराष्ट्र लाइज गोवा। इट हैज़ मैनी ब्यूटीफुल बीचेस। फार्मिंग एंड फिशिंग देयर मेन ऑक्यूपेशन। राइस, च्यू नट्स, सुपारी एंड स्पाइसेस आर द चीफ क्रॉप्स। स्पाइसेस होता है मसाले। कोकोनट पाम्स आर वाइडली ग्रोन इन द कोस्टल एरियाज। ठीक है। कोकोनट ट्रीज। माइनिंग इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री। माइनिंग जो खोद के अर्थ को खोद के वहाँ निकाले जाते हैं मिनरल्स को, वो माइनिंग प्रोसेस होता है। ठीक है। ये देखिए बीचेस हैं गोवा में। ओके। फिर है मैंगनीज एंड आयरन आर फाउंड ऑन प्लेंटी। जो आपको नेचुरल सब्सटेंसेस वहाँ पे मिलते हैं गोवा में, कौन कौन से हैं? मैंगनीज एंड आयरन। थाउजेंड्स ऑफ पीपल विजिट गोवा फॉर इट्स सन, सैंड एंड नेचुरल ब्यूटी। आपको पता है गोवा इज अ फेमस टूरिस्ट प्लेस, है ना? पीपल गोन फॉर द बीचेस टू एंजॉय द सी बीच। गोवा हैज सम ऑफ द मोस्ट फेमस चर्चेज इन इंडिया। चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस। द रिमेन्स ऑफ सेंट फ्रांसिस सेवियर हैव बीन केप्ट इन द बसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ठीक है। ये क्रिश्चियन रिलीजियन का होता है चर्च। ठीक है।
The Mahalakshmi Temple, Fort Aguada are few other places of tourist interest in Goa. मेन क्रॉप्स हैं, मेन फूड मटेरियल्स हैं राइस, वेजिटेबल, मीट एंड फिश. मेन फूड्स हैं गोवा के. मैन क्या पहनते हैं? ट्राउजर एंड शर्ट. वुमेन जो है वो स्कर्ट, ब्लाउज और साड़ीज पहनती हैं. क्रिसमस जो है उनका मेजर फेस्टिवल है गोवा का. गणेश चतुर्थी, ईद, होली, शिगमो आर सेलिब्रेटेड. पणजी is the capital of Goa state. Okay, so today this is enough for today, and you have to read up to here on page number 45. Next part will complete in the next class. Okay, bye bye. Read the chapter very carefully.